Students, today I am going to explain you the chapter number 1, that is work and energy. Okay? Firstly, we should know what is work. Um, a person, you will see a picture that a person is swimming. So this is mean that he is doing a work. ठीक है? बट इस वर्क को करने के लिए ही नीड सम टाइप ऑफ एनर्जी. ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज, मतलब कोई ताकत जो काम करने के लिए चाहिए, दैट इज एनर्जी. ठीक है बेटा? वर्क क्या है? द प्रोसेस और थिंग दैट इज हैपनिंग इज अ वर्क, एंड द एनर्जी इज नीडेड फॉर डूइंग दैट वर्क. ठीक है बेटा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क and energy. This is the basic difference. Now we will talk about the definition of the work. What is the definition of the work? In physics, work means move, then something that required physical or mental effort. Work is done on an object when a force causes the displacement of the object. ठीक है? वर्क कब कहते हैं हम कि वर्क हुआ? कैसे? जब कोई फोर्स किसी चीज पे अप्लाई की गई एंड उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव कर गई, डिस्प्लेस हो गई अपनी स्पेस से, अपनी जगह से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है? एंड द वर्क इज डन. कोई भी फोर्स अप्लाई करने की वजह से कोई भी बॉडी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चली गई, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्क. ठीक है? Work is said to be done when the force is applied and displacement of an object takes place. Now, we will talk about the formula of the work. What is the formula of the work? W is equals to FD. F is the force and D is the displacement. ठीक है? यानी work is the multiple of the work is the sum of. वर्क इज द सम ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वर्क जो है वो निकल आता है. अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क की. यू ऑल नो दैट देयर आर सर्टेन एसआई यूनिट फॉर एवरीथिंग. ओके, सो देयर इज अ एसआई यूनिट ऑफ वर्क दैट इज कॉल्ड एज जूल. ठीक है? The SI unit of work is joule, that is derived from the formula that is force and displacement. Force is the Newton and displacement is meter, Newton meter या joule. ठीक है? न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं और जूल भी बोल सकते हैं. दिस इज द यूनिट ऑफ द वर्क. ठीक है बेटा? नाउ यू विल सी वन एग्जाम्पल. Work, power and machine. Okay, this is the formula. Work is equals to force into displacement. एक example दी हुई है. A child uses 25 Newton of force in order to move a toy car for a distance of 5 meter. How much work did he use? ठीक है? सिंपल, आपके पास फोर्स गिवन थी एंड डिस्टेंस गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर दैट इज वर्क. ठीक है बेटा? वर्क को फाइंड आउट करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. ठीक है? नाउ this is the now I am going to explain you the example from the book. आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है वर्क की. ठीक है? A force of 10 Newton is used to push the trolley. The boy was pushing the trolley with the distance of 5 meters. So the work should be, we will have to find out the work. So how do we find out the work? By force into distance. Force कितनी है? 10 and distance is the 5. So we will multiply both of them. So 10 into 5 is equal to 50 joule. 50 joule is the answer, or we will write that 50 Newton meter or 50 joule. This is the same. वर्क का जो बेसिक यूनिट है दैट इज जूल, जो कि मिलकर बना है न्यूटन मीटर से. ठीक है बेटा? उसके बाद आपके पास है एनर्जी एंड वर्क. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड वर्क? मैंने आपको पहले भी बताया दैट यू विल डू द वर्क विद द एनर्जी. ठीक है? वर्क is done because of the energy. If you have the energy, you will do the work. So the unit of the energy is kilojoule. These are the unit greater than that of the joule. joule से बड़े होते हैं, मतलब एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है और वर्क का यूनिट भी जूल होता है. आपके पास जो जूल से बड़े यूनिट है दैट इज द किलो जूल, मेगा जूल. ठीक है?
अच्छा, there are several different types of energies which can be used to do work को काम करने के लिए किसी भी किस्म का आपके पास different type के energies given है, that is the potential energy and kinetic energy. जो two types of energy है, that is the potential energy and the kinetic energy. What is the difference between potential energy and kinetic energy? We will talk about this. Okay, potential energy, you will see this, what is written. Potential energy is the energy that is stored in an object as a result of its position or condition. वो एनर्जी जो एक बॉडी रुकी हुई बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से हो, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बेटा, एनी बॉडी विच इज स्टैंडिंग, ठीक है, कोई भी चीज रुकी हुई है तो उसके रुकने की वजह से, उस पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो स्टोर हो जाती है उसके अंदर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट. किसी भी बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल्स देके आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जस्ट अ मिनट. Okay, now potential energy, the energy associated with an object because of its position, shape और condition. ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक बॉल जो कि ऊपर है, जब वो ऊपर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है. जब उसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया गया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. The energy associated with an object because of its position and shape or condition, this is called as the potential energy. And now we will see another example. You will see this example. Kinetic energy, जब एक बाइसिकल राइडर है, that moves the bicycle on the at the hill. ठीक है, हिल पे मूव करवा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. एनर्जी इन, यानी एनर्जी ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. एनर्जी लगी काइनेटिक एनर्जी, चूंकि मूवमेंट में पूरा टाइम. ठीक है, उसके बाद जब वो पीक पे पहुंच के स्टॉप करेगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. ओके, उसके बाद नीचे उतरेगा एनर्जी, चूंकि नीचे उतरने में एनर्जी कम लगती है, एनर्जी रिलीज आउट एंड दिस इज अगेन अ काइनेटिक एनर्जी. इन द सेम वे यू विल सी अनदर एग्जांपल. A girl is having a ball in his hand. ठीक है, जब तक वो बॉल उसके हाथ में, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ही उसने वो बॉल ड्रॉप कर दी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई. ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ द बॉल की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. ड्यू टू द मूवमेंट जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और ड्यू टू इट्स पोजिशन जो एनर्जी होती है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बेटा, यू विल सी दिस. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. जब वो ऊपर पोजीशन पे पहुंचा, देयर इज अ ट्रेन, यू विल सी दैट इसकी मूवमेंट हो रही है. जब ये ऊपर स्टीप पे पहुंचता है, बिल्कुल टॉप पे पहुंच रहा है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है. देन ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है. सही बेटा. अच्छा, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी: इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, एंड last one is nuclear potential energy. Elastic potential energy, you know that we will talk about the spring, that it have elasticity. सही है. Gravitational potential energy due to the gravity of the earth, that is the gravitational potential energy. Chemical potential energy is due to the different types of chemicals that may be present in food or any other item which is consumed by humans or other thing, that is the gravitational potential energy. And last one is the nuclear energy, that is used in the nuclear power plants for different purposes, like that of generation of electricity or any other purpose. Thank you.